Good afternoon, everyone. Is it audible? Yes. Is it audible, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir.
Good afternoon. Am I audible? There is some problem in the network today because of rain. So I was just working with the internet. I hope I'm audible. Let me know. Yes, ma'am, you're audible. Okay, very good then. Are we good to start? Yes, ma'am. Okay. So I want to know something like last lecture. Last Friday, we didn't have our lecture. Last Friday, we started with a law and we were to complete it. So who amongst you would tell me like what we had started in the last class? And we also had decided to take up a particular law in this class today. Last Friday. Okay. Did we complete Constitution? Did we complete Constitution in the last class? And we had started with Contract Act. Anybody who agrees with me? We started with Contract Act in the last class. Yes or no? You can unmute yourself and let me know instead of putting it in the chat. Yes, Shruti. So we are to start with Indian Contract Act today. Okay. In the last class, we had decided to do contract. So I had given you certain terms to read and come. I'm sharing my screen. Let me know if you can see it. So wait for a minute, it's processing and you will see the screen. Okay, I'm not able to see the screen from my another device, but for you, anybody of you who is able to see the screen? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, just a minute. Because of the electricity being disconnected and I'm working on the right. So now I guess you are able to see it because I'm working on the inverter. It seems it takes time. Can you see the screen now? Yes. Okay. Right. So here we start with understanding the basic transactions of contract. The basic transactions of contracts are all the transactions that you do every day. So you go to the shop, you buy things for yourself, you rent out cars from Ola, or you take services. You take services of home delivery from Zomato. You take services of a lawyer. You take services of a chartered accountant. All of these are contracts. Why are these contracts? Because there is a give and take in this. In every transaction, you've got a give and take. So if you are giving money, they're giving you either goods or they're giving you certain services. Now, on this background, from today onward, keep assessing every transaction that you do, everything that you shell out into. So if you are giving services, somebody is giving you money.
and sometimes it's amongst you, in between you and your friend. How many of you borrow your friend's book to complete your books? ऐसे होता है ना, हम लोग ना लेक्चर मिस कर दिया या तो फिर हमें बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए कंप्लीट करने के लिए. और दूसरा ये, आजकल तो लॉकडाउन पीरियड है, तो पेरेंट्स भी कहीं बाहर भेजते नहीं है, तो ये एक अच्छा बहाना है, तुम पेरेंट्स को बोल देते हो कि मेरी ये वाली बुक मेरी कंप्लीट नहीं है, मुझे मेरे फ्रेंड से बोरो करनी है. तो यही बहाने से यू कैन गो आउट, मीट योर फ्रेंड, भले उसके घर में ही जाके मिल लेते हो. डू यू डू दिस? डू यू बोरो बुक्स फ्रॉम योर फ्रेंड टू कंप्लीट? यस और नो? Yes. है ना? So when you borrow books from your friends to complete, is there any contract between you and your friend? No, ma'am. No? Okay. How many of you say no? Please unmute yourself and let me know. No. Okay, so I've got 2 no, No. No. 3 no. No. Okay, 4. Uh-huh. So five people said no. Others? We are 16 over here right now today. मैं छोड़ के, मैं ही 2 जगह से लॉग इन हूँ. तो ओके, 6. बाकी 10 क्या कर रहे हैं? No, ma'am. Okay, 11. Others, I want everybody to be active in the class, okay? तो तुम सब सोचते हो कि अगर तुमने तुम्हारे फ्रेंड से कोई बुक बोरो की तो तुम्हारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. And you know what the law of contract says? It says there is a contract between you and your friend, and that contract is called as, ठीक है, that contract is called as, मैं नहीं बताऊंगी अभी, वो आप बताओगे. बस और एक सवाल है. चलो मैं ना एक पोल क्रिएट कर रही हूँ अभी. ओके, सो आई एम क्रिएटिंग अ पोल. ये पोल में पोस्ट करूंगी, आप सबने मुझे आंसर देने हैं. तो दिस वे आई गेट टू नो कि सारे 18 16 के 16 तुम लोग एक्टिव हो के नहीं. ये पोल क्रिएट करने में टाइम ले रहा है. ओके, लेट इट बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत टाइम ले रहा है पोल क्रिएट करने में, सो आई बेटर डोंट क्रिएट इट. if you borrow a book from your friend, what care are you supposed to take? बुक लिया है तो बुक के बारे में तुमको क्या केयर लेनी पड़ती है? तुमने फ्रेंड से बुक लेके आए हो, क्या तुम ये बुक घुमा सकते हो? कैन यू अफोर्ड टू लूज द बुक? No. No. So what care are you supposed to take of the book? We will not put the book anywhere. हाँ, तो you should not lose the book, right? Okay. फिर क्या तुम उस बुक पे आचार गिरा सकते हो? No. No. So are you supposed to take good care of the book? Yes. Yes. Maximum आपने केयर लेना है उस बुक को. आप घुमा नहीं सकते उसको, आप उसको स्पॉइल नहीं कर सकते हो. आपके घर पे डॉगी है तो आप क्या केयर लोगे? There's a doggy in your house और आप बुक लेके आ रहे हो, तो डॉगी में जस्ट टेयर द बुक, तो आप क्या केयर लोगे?
बुक को किसी सेफ जगह पे रखेंगे जहाँ पे डॉगी नहीं रह सकता। तो safety की care, so you will keep the book as safe as possible. Secondly, you cannot dare to lose the book. Thirdly, you cannot spoil the pages inside the book. तो उसके ऊपर बैठ के खाना खाना, भेलपुरी ये सब नहीं खा सकते तुम, right? You have to take maximum care of the book. और क्या care लोगे आप? Do not fold the page. हाँ, so do not spoil the book. Do not spoil the appearance of the book. Do not spoil, reduce the use value, the utility value of the book, and keep it safe. Do not lose it. अब इन सब के साथ और एक केयर क्या लोगे आप? उसको वापस भी दोगे ना? Yes. Will you not return it to your friend within a reasonable time? Yes. तो 2020 की मार्च में आपने उससे एक बुक ली कंप्लीट करने के लिए. आज 2021 की जून है. आज तक आप वो बुक रख पाए क्या आपके पास? No. नहीं. है ना? तो यू हैव टू रिटर्न द बुक टू योर फ्रेंड विद इन अ रीजनेबल टाइम. कैन यू क्लेम ओनरशिप ओवर द बुक? No. So you cannot claim ownership over the good books बोलते हैं, ठीक है. You cannot claim ownership. You cannot afford to lose the book. Then you have to take maximum care of the book. You cannot spoil it. You cannot minimize or reduce the utility of that book. Then you have to complete the purpose for which you had borrowed the book and then return it back within a reasonable time. So these, and there are other more type of care and all that you are supposed to take about the book. And every time that you are taking care of the book, you should see to it that it is in your possession. घुमा नहीं सकते हो ना आप उसको. You cannot afford to lose it. You have to keep it in your possession. But at the same time, you will remember that you are not the owner of that book. Right? So you are not the owner of the book. You know it. But you have to keep the possession, and you have to keep the possession till you return back the book to the right owner. Until you return it back, you have to complete the purpose for which you have borrowed it, and you have to keep it in safe custody without diminishing the value, utility value of it and all, right? So these are things are what? These are all your, तुम समझते हो ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तुम वो बुक को लेके आए अपने फ्रेंड से, तो तुम समझते हो ना कि ये सारी चीजें जब अभी हमने लिखदम की, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस और नो? Yes, ma'am. So the word responsibility in legal language is interpreted as liability. तो liability तो आपकी create हो गई जब आप बुक borrow करके लेके आए अपने फ्रेंड से. तो liability create हो गई है आपकी. तो जो आपकी liability है वो उसका राइट है. अगर आपने नोटबुक को खराब कर दिया, समझो आप उसके कुछ पन्ने फट गए या उसका कवर फट गया, आपके डॉगी ने उसको फाड़ दिया, या आपका छोटा भाई बहन या भांजा, किसी के साथ ऐसे हुआ है कभी? आपने फ्रेंड का बुक लाया है और आपके छोटे भाई या बहन ने या डॉगी ने घर में उसका कवर फाड़ दिया हो, फिर आपको नई नोटबुक लेके वो पूरा अच्छे से लिख के उसे वापस देना पड़ा फ्रेंड को. कभी हुआ आपके साथ? यस और नो? No. कभी नहीं हुआ है. यू ऑलवेज बीन वेरी केयरफुल. तो मेरे साथ ऐसे हुआ है. मैं मेरी फ्रेंड के मैथ्स की नोटबुक लेके आई थी, स्कूल में थी तभी, वो भी फैग ईयर एंड पे लेके आई थी. तो ऑब्वियसली सारा सिलेबस खत्म हो गया है और पूरा नोटबुक भरा हुआ था, और मेरे घर में एक डॉगी था, उसने कवर फाड़ दिया, सिर्फ कवर फाड़ा, अंदर का कंटेंट सब इंटैक्ट अच्छा था. माय फ्रेंड गॉट वेरी वाइल्ड. और अभी नोटबुक चेक करने के लिए भी देनी है, लाइक स्कूल्स में होता है, राइट? यू गाइस आउट ऑफ स्कूल, तो अभी इतना डरने की जरूरत नहीं है. बट स्कूल्स में हमें नोटबुक देनी पड़ती है टीचर के पास चेक करवाने के लिए. माय फ्रेंड कुडंट गिव द नोटबुक लाइक दिस विदाउट अ कवर और विद अ टोन कवर. तो उसके ऊपर कवर भी होना चाहिए. माय फ्रेंड से तू पूरा रीराइट कर. और पूरा रीराइट करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कितना सारा सिलेबस था. तो मैंने जो पहले फर्स्ट 2 पेजेस जो मेरे डॉगी ने फाड़े थे उसको रीराइट किया,
फिर इस बुक को ना जाके बाइंड करवाया अच्छे से, उसको कवर वगैरह लगवा के, और एक नोट लिखी उसके ऊपर और लिखा कि आई हैड बोरोड दिस बुक फ्रॉम माय फ्रेंड, आई एम सो एंड माय डॉगी like teared it and I couldn't help doing it. I have tried to complete the first 2 pages of this book, and so he should not be held responsible for whatever, not a very good submission. ऐसे करके लिख के मैंने नोट लिख के टीचर को दे दिया था कि इट्स नॉट हिज मिस्टेक, द बुक इज बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मी, अदरवाइज दिस बुक वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन एंड प्रॉपर हैंडराइटिंग एंड ऑल, तो उसको जो भी नोटबुक के मार्क्स मिलने हैं वो आप दे दीजिए। तो ये सब बोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, और उसने ये भी बताया कि जो भी खराब हो गया है वो तू ही मेंड करके लेके आ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नाउ डू यू थिंक दैट ही वाज राइट इन दिस केस? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ही वाज राइट? उसने ये बराबर किया कि मैं को ही जिम्मेदारी मेरे पर ही डाल दी कि मैंने कवर भी बिठा के लाना है, 2 पेजेस जो खराब हो गए थे उसको रीराइट करना है, और बाकी तो अक्खर रीराइट नहीं कर सकते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीचर को जाके बोलना भी है कि मेरी गलती है और उसके मार्क्स मत काटो। तो इतनी सारी जिम्मेदारी उसने मेरे सर पे डाल दी, तो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस राइट और रॉन्ग? राइट है। Right, ma'am. राइट है। तो बिकॉज सी नाउ ये कहाँ से आता है आपका आंसर? इट कम्स फ्रॉम द फीलिंग ऑफ राइटसनेस। यू फील कि ये मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने जानबूझ के डॉगी को नहीं दिया था नोटबुक, बट आई कुडंट टेक दैट मच ऑफ केयर, आई कुडंट कीप द नोटबुक अवे फ्रॉम माय डॉगीज रीच, so it's my responsibility even if it's not my fault. Now where does this come from? This comes from a very inherent feeling that each one of us have. So contract act is basically built upon all these inherent feelings. So we have the feeling कि ऐसे situation में ये मेरी liability है, the person who took it is liability, and that is righteousness, that is justice for the owner of the notebook, right? Now this is also a contract actually, and which is recognized under Indian Contract Act 1872, and this type of contract is called as contract of bailment. This is called as contract of bailment, BAILMENT, bailment. आगे तो हम लोग पढ़ने वाले contract of bailment के बारे में, बट ना अभी मैं बता रही हूँ, आपको याद रखना है, इसके बारे में पढ़ के रखना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपके टेक्स्ट बुक में भी है जो आपने करियर लॉन्चर से लाए हो, तो यू हैव टू मार्क इट, रीड इट प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड what exactly is contract of bailment, how the rights and liabilities in contract of bailment is put on the head of each party to the contract. Okay, तो जब आप नोटबुक लेके आते हो आपके फ्रेंड से, आपके और आपके फ्रेंड में भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, भले आपका इंटेंशन हो या ना हो, भले आप एकदम फॉर्मली उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करो या ना करो, द मोमेंट यू से कि आई वांट टू बोरो योर नोटबुक, एंड द मोमेंट योर फ्रेंड लेंड्स हिज और हर नोटबुक टू यू, नोटबुक हो, बुक हो, व्हाटएवर, तो देन दैट वेरी मोमेंट बेलमेंट क्रिएट हो गया। बेलमेंट एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ओनरशिप ओनर के पास ही रहती है, पॉजेसर के पास ट्रांसफर नहीं होती, एंड पॉजेसर हैज गॉट एन एब्सोल्यूट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग गुड केयर ऑफ द बुक, गुड केयर ऑफ द गुड्स। और एक बार वो टाइम लिमिट खत्म हो गया जिस पर्पस के लिए गुड्स लिए थे, या कुछ टाइम फ्रेम था 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो उतना टाइम खत्म होने के बाद आपने वो गुड्स उसे वैसे के वैसे वापस देने चाहिए, दैट इज बिलमेंट। Now any of you have put your 2-wheeler or 4-wheeler in the garage for repair any time till now in your life? आज तक कभी तुम्हारा 2-wheeler या 4-wheeler गैराज में सर्विसिंग के लिए या रिपेयर के लिए दिया है, या नो? Yes. सो रिपेयर होने के बाद आर यू एंटाइटल्ड टू टेक बैक योर व्हीकल? Yes. Yes. रिपेयर हो गया और आप रिपेयर हो गया, आपको पता ही नहीं, आपको 2-3 महीने के बाद अचानक याद आया, अरे मेरा तो 2-wheeler दिया था गैराज में, रिपेयर हुआ कि नहीं क्या पता, गैराज वाले ने बोला। आप गैराज जाओगे, उसको पूछेंगे भाई मैंने मेरा एक्टिवा दिया था 3 महीने हो गए, तो कर क्या रहे हैं एक्टिवा के साथ, अचार तो नहीं डाल दिया तुमने? तो बंदा आपको बोलता है मैम कब का हो गया आपका एक्टिवा, आप तो आई नहीं लेनी। व्हाट वुड यू ऑब्वियसली टेल हिम? व्हाट वुड यू ऑब्वियसली से इफ ही सेज कि 3 महीने, अरे कब का हो गया आपका तो रिपेयर? You could have informed. हाँ, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एनीबडी वुड से, राइट? अरे भैया हो गया था पूरा सर्विसिंग या रिपेयरिंग, तो आपने बोल देना ना मेरे को फोन करके कि हो गया है, लेके जाओ। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपका काम हुआ है कि नहीं? So that's again a responsibility of communication.
इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो बेलमेंट तो अपने आप क्रिएट हो गया, जैसे ही आपने आपका एक्टिवा दिया गराज में रिपेयर के लिए, वैसे बेलमेंट क्रिएट हो गया। तो जैसे ही बेलमेंट क्रिएट हो गया, उसमें लायबिलिटीज भी क्रिएट हो जाती है। तो बेलमेंट की लायबिलिटी क्या है कि जिस काम के लिए गुड्स दिए थे, वो काम खत्म होने के बाद जिसके पोजीशन में गुड्स है, उसने कम्युनिकेट करना है ट्रू ओनर को कि भाई काम हो गया है, आप आके लेके जाओ। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कैसे हो रही है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इंट्रिंसिक एक इंस्टिंक्ट है। ये तुम्हारी इंस्टिंक्ट है ना, कि तुम बोल रहे हो अरे गाड़ी रिपेयर हो गई तो बोल देना चाहिए ना, मैं आके लेके जाती। तो कम्युनिकेट उसने करना, ये इंस्टिंक्ट है। अच्छा पकड़ लो, आपने एक्टिवा दी है हाँ गराज में रिपेयर करने के लिए, उसने बोला 3 दिन लगेंगे, चौथे दिन आके लेके जाओ। ठीक है, तो आप चले गए घर पे। अभी तो आप 3 दिन के बाद ही मुंह दिखाओगे ना वो गराज वाले को, ये सुनो। यस। आप 3 दिन के बाद गए अपना गाड़ी लेने, फिर वो गराज वाला बोलता है अरे मैम जल्दी आना चाहिए था, अभी तो गाड़ी आपकी मिल ही नहीं रही। तो तुम्हारी एक्टिवा नहीं मिल रही है उसके गराज में, कहीं नहीं मिल रही। इट्स नॉट ट्रेसेबल एट। किसकी जिम्मेदारी है? गैरेज। हम्म, गैरेज। गैरेज ओनर की। अगर आप, यही सिचुएशन है, लेकिन आप 3 महीने के बाद गए उसके गैरेज में गाड़ी लेने, और बीच में उसने आपको कम्युनिकेट किया ही नहीं है कि कि आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई। आप गए 3 महीने के बाद, अब गाड़ी नहीं मिल रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी। एब्सोल्यूट तुम्हारी है कि 50-50 है? 50-50। 50-50। उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसने कम्युनिकेट कर देना चाहिए था ताकि आप लेने आते। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके गुड्स अगर उधर पड़े हुए हैं और बेलमेंट में है, आपने उसे ओनरशिप नहीं दिया है, सिर्फ पोजीशन दिया है, वो भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पोजीशन दिया है, तो आपने विजिलेंट रह के जाके अपना अपना गाड़ी वापस लाना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ही बीइंग नेग्लिजेंट in not communicating to you, and secondly being negligent and losing your two-wheeler from his premises, that is why it is his responsibility, because he is under the contract of bailment. आया समझ में? yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। okay, so got it कि कैसे ये, अभी ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेलमेंट के कंसेप्ट में, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लाई गई है। So eventually when we are going to learn bailment, I want you guys to remember this, right? तो बेलमेंट में ये राइट्स एंड लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिकॉग्नाइज की गई है, ऐसे लायबिलिटीज, और ये प्रोनाउंस किए गए हैं प्रोविजंस में कि ये लायबिलिटी है, ऐसी है, केयर टेकिंग, कम्युनिकेशन एंड नॉट कम्युनिकेटिंग एंड नॉट। बट बेसिकली ये सारे लायबिलिटीज आए कहाँ से? ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट से आए हैं। तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, तुमको ऐसे लगता है कि अरे मैंने व्हीकल अगर दिया है सर्विसिंग के लिए, तो बंदे ने मुझे कम्युनिकेट करना है फोन करके कि हो गया सर्विसिंग। दूसरा, मेरे गुड्स अगर उसके पास, या मेरी स्कूटर उसके पास सर्विसिंग के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि वो गराज वाले ने मेरे स्कूटर का पूरा पूरा ख्याल रखना है। क्या क्या ख्याल? कि जो रिपेयर के लिए देने हैं उतना ही रिपेयर करना है उसने, और खराब करके नहीं रखना है। दूसरा क्या है कि उस द गराज ओनर इज सपोज टू टेक गुड केयर ऑफ हिज बुक ऑफ द गुड्स। जैसे वो अपने गुड्स की केयर लेता है, वैसे ही उसने मेरे गुड्स की भी केयर लेनी है। अगर उसकी एक्टिवा होती तो कितना केयर लेता, वो थोड़ी किसी के भी हाथ दे देता, या चाबी गाड़ी पे रख के भूल जाता, नहीं। तो उसने वैसे ही मेरे गाड़ी का भी केयर लेना है। मेरे गाड़ी के हैंडल पे अनलॉक करके चाबी उधर ही रख दी, छोड़ दिया, फिर चोरी हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाड़ी नहीं मिल रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ कुछ पुर्जे उसके तोड़ दिए, टूट गए, या डिफेस हो गई मेरी गाड़ी, कुछ खराब हो गया, तो ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Because when the goods are in his possession, he is supposed to take good care of the goods. गुड केयर का मतलब क्या है कि बेयर मिनिमम इतनी केयर लेना है गुड्स की कि उसे अपरेंटली कोई भी डैमेज ना हो, और ना ही उसका डिमिनिश हो वैल्यू। तो यूटिलिटी वैल्यू जो होता है, अब जैसे स्कूटर है, अब स्कूटर की यूटिलिटी वैल्यू क्या है? ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आई यूज अ स्कूटर टू कम्यूट फ्रॉम माई हाउस टू अदर प्लेसेस, राइट? तो अगर समझो उसके मशीन में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई, ये बंदे के पास रहने की वजह से, कि गराज का कोई आदमी या लड़के ने
इसको खोल के देखने की कोशिश की, कुछ नया सीखने की कोशिश की। अब उसके कोशिश में चक्कर में मेरा स्कूटर का मशीन खराब हो गया। अब वो मेरी स्कूटर ऑन ही नहीं होती है, और अगर ऑन होती है तो बंद नहीं होती है ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे स्कूटर में आ रहे। बंदे ने, गराज वाले ने उसको जितना बोला था उतना रिपेयर किया, मेरे को टाइम पे वापस दिया, मैंने उसको पैसे देके स्कूटर में घर लेके आई। फिर यूज करते वक्त मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बार बार बंद पड़ रही है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने स्कूटर को किसी और को, दूसरे मैकेनिक को दिखाया, तो उसने कहा कि ये मशीन के अंदर ना गड़बड़ हो गया है, ये गलत लग गया है या क्या। तो ऑब्वियसली मैं जाके अभी क्या करूंगी, किसको पूछूंगी सवाल, या कौन लायबल होगा इस चीज के लिए? क्योंकि मैं तो मशीन खोल के नहीं चलाती ना उसको। हम लोग कैसे चलाते हैं गाड़ियां, हम लोग एक्सटर्नली चलाते हैं। तो मशीन खोल के कुछ करने का तो पॉसिबिलिटी है नहीं, मैं तो करूंगी नहीं। तो दिया किसके पास था पहले सर्विसिंग के लिए? गराज ओनर के पास। तो अभी मैं जाके लायबिलिटी किसके सर फोड़ सकती हूँ? Can I claim the garage owner to be responsible for any kind of fault in the machine? Yes or no? I hope I'm Yes. audible. तो इसका मतलब देखो क्या है कि स्कूटर वापस लाने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। उसके बाद भी नया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है जब हम डिस्कवर करते हैं कि बेलमेंट के पीरियड में उस गुड्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुआ है। ठीक है, so this contract of bailment puts responsibility not only during the performance of the contract but also later on, and this is recognized under the Contract Act 1872, and this kind of contract is called as contract of bailment. ठीक है, तो जब भी आप आपका कार देते हो सर्विसिंग के लिए, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। कोई भी व्हीकल आप देते हो सर्विसिंग के लिए या रिपेयर के लिए, कोई भी मशीन आप रिपेयर के लिए देते हो, घर में एक सीपीयू आपके पड़ा है, वो सीपीयू आपने उठाया और किसी कंप्यूटर बंदा जो आपका है असेंबली या रिपेयर करने वाला, उसके पास जाके दे दिया, उसको बोला यार ये बार बार हैंग होता है तो ये सीपीयू को ठीक करके दे दे, ये भी बेलमेंट है। आपकी मम्मी मिक्सर या कुछ ऐसे देती है दुकान में रिपेयर करने के लिए, ये बेलमेंट है। तो आपका फ्रेंड आपको नोटबुक कंप्लीट करने के लिए देता है, ये बेलमेंट है। ठीक है, आपका फ्रेंड आउट ऑफ नासिक जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो उसकी कार जो है वो आपके घर छोड़ के जाता है, बोलता है यार मैं 6 महीने हूँ नहीं, यूएस जा रहा हूँ, तो 6 महीने गाड़ी बंद रहेगी तो खराब हो जाएगी, तो तू 6 महीने इसको यूज कर लेना। तो आप, वो आपको यूज के राइट्स दे रहा है, वो आपको ओनरशिप नहीं दे रहा है, ये भी बेलमेंट है। कोई आपके फ्रेंड या रिलेटिव आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो उनका घर बंद है, वो आपको चाबी देते हैं और बोलते हैं बीच बीच में चक्कर लगाया करो, थोड़ा साफ सफाई किया करो, ये भी बेलमेंट है। तो बेलमेंट का मतलब क्या है? व्हेन अ गुड मूवेबल और इमूवेबल इज हैंडेड ओवर टू अनदर पर्सन अदर देन द ओनर फॉर सेफ कस्टडी, और एल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और एल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे हम कार दिया है तो क्या पर्पज है कि इसको सर्विसिंग करो, या उसका ब्रेक लाइनर खराब हो गया या जो भी खराब हो गया उसको रिपेयर करके दे दो, तो स्पेसिफिक पर्पज है। अभी वो पर्पज है, अभी समझो जैगवार आपने दे दी, आपके जैगवार में कोई प्रॉब्लम है, आपने वो दे दी किसी शोरूम में या कहीं, और वो जैगवार के पार्ट्स आने में टाइम लग रहा है अभी, तो टाइम फिक्स नहीं कर सकते आप। पैंडेमिक की वजह से जैगवार के पार्ट्स आके उसको रिप्लेस करके देने में टाइम लगेगा, पता नहीं कितना लगेगा, बट आप ही ओनर रहोगे हमेशा, और वो बंदा will be under the responsibility of bailment, and he will have to do the required thing and then return the goods back to you. This is also contract. So there are different types of contract, there are different ways in which contracts are done, there are different legal liabilities and legal rights created due to and because of the relationship of contract. So when you are studying contract, you have to study how this relationship gets created, how the rights and liabilities get created. तो बेलमेंट का ये पूरा एग्जाम्पल आपको एकदम पक्का ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम लोग डिटेल देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी हम लोग बेलमेंट के टॉपिक पे आएंगे, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस, राइट? लॉ इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग things, okay? It's not about reading and understanding alone, it is about reading, understanding and retaining
समझा ना, RRR. So what is contract and how it is created? Contract तो basically create होता है एक स्टेटमेंट से. अगर वो स्टेटमेंट ऑफर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, वरना नहीं. So there has to be an offer, there has to be an acceptance be as per the requirement of Contract Act. So when two people agree on something according to the terms expressed in the Contract Act, if the offer is fits into the definition of contract, if the word acceptance fits into the definition of Contract Act, then only it will be called as respectively offer and acceptance. So unless and until you have acceptance, this relationship cannot move forward. Once there is acceptance, this relationship becomes an agreement. So there is an agreement between two people. अभी भी ये contract नहीं बना है. It is just an agreement. So you can always say that all agreements are not contract, but all contracts are always agreements. जब तक कोई भी communication agreement नहीं बनता है, तब तक वो contract बन ही नहीं सकता. और हर agreement है ना contract नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि there are certain agreements which will not have legal enforceability. So only those agreements which are legally enforceable, so which have the factors of being enforced in the court of law, only then it will be called as contract. अभी enforced का मतलब क्या है? Enforced का मतलब अभी जैसे आपने बेलमेंट का एग्जांपल देखा, उसमें आप रेमेडीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने अपना पार्ट ब्रीच कर दिया है तो उसने दूसरे सामने वाले पार्टी को कंपनसेशन के साथ बाकी जो भी डिसाइड हुआ था वो सब देना है. तो ये क्या होगी? रेमेडी हो गई एग्रीव पर्सन के लिए. तो जब तक ऐसे रेमेडी नहीं मिलेगी ये रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am able to hear from the class. Can you hear me? Yes, ma'am. मुझे किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है कब से. Am I audible? मुझे इंटरनेट Yes, ma'am. कनेक्टिविटी भी पूरा दिखा रहा है. Yes, ma'am. So I'm getting in chat box that I am audible. Okay. So
हेलो, hello, I hope I'm audible. I'm not able to get any answers from you. Yes, ma'am. Can you see the screen? Because Yes. I can see that I'm all in the meeting and even the internet connectivity is good. Okay, right. So I was talking about different types of contracts, and the same rights and liabilities is created in all types of contracts. Okay, so the liability is created only when there is a proper offer and a proper acceptance. Then a liability is created. That is why it is called as agreement. Now, why every agreement is not a contract? Because agreements create rights and liabilities, but every agreement does not create a relationship which will be enforced by law. And as I just said, enforceability by law means getting remedy. I also was saying about what is remedy. So if there is a breach by one party, the other party can get compensation, the other party can get the things done. जैसे कि मैंने वो नोटबुक को बाइंड करके या उसके जो खराब पेजेस थे उसको रीराइट करके और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीचर को जाके बताया कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, आप उसके मार्क्स नहीं काटो। तो ये कैसे बन गया? मेरी लायबिलिटी बन गई। पैसे देने की लायबिलिटी नहीं है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने वाली लायबिलिटी बन जाती है। तो ये जो है ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो लॉ कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हैं। एनफोर्स का मतलब है कि मेरे से वो करवा ले। जैसे अभी आप गराज का एग्जांपल लो, आपने गराज में गाड़ी रखी और वहां से गाड़ी गायब हो गई, अभी गाड़ी नहीं मिल रही है, तो चोरी हो गई या व्हाटएवर, बट तुम्हें क्या लेना देना कि गाड़ी के साथ क्या हुआ? तुमने गाड़ी किसके पास दी थी? गराज वाले के साथ। क्यों दी थी? रिपेयर करने के लिए, सर्विसिंग के लिए। उसने कितने दिन में आपको वापस देना था? 4 दिन में, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। और अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से 4 दिन में नहीं दे पा रहा है तो कब देना है? विद इन रीजनेबल टाइम। अब बिफोर रिटर्निंग द गुड्स टू यू, अगर रीजनेबल टाइम में वापस नहीं दिया या गुड्स डैमेज हो गए तो लायबिलिटी किसकी बनती है? गराज वाले की। तो उसकी लायबिलिटी यानी क्या? एक तो उसने आपको गाड़ी वापस देनी है, गाड़ी का जितना कॉस्ट है वो देना है ना। अब इन सब चीजों को बोलने के लिए तुम्हें कोई लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मन से ही ये सारी रेमेडी बता दोगे। तो मन से बता रहे हो यानी कि इंस्टिंक्ट है। तो इंस्टिंक्ट बताती है कि आपका वायलेशन कहाँ हुआ है, कोई राइट वायलेट। तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? उस इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे क्या होगा रेमेडी? यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी क्या होगा कि कोर्ट तुमको गाड़ी दिलवाए, कोर्ट तुमको सामने वाले से पैसा दिलवाए। तो अगर आपको ये रेमेडी मिलती है तो आप बोलोगे कि हाँ ये वाला एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Enforceability, I mean getting actual remedies. Okay, getting reimbursed, getting remedy, getting money back. All these are types of remedies which is actually enforceability. So if you cannot enforce this agreement in the court of law, then this agreement will never become a contract. So agreements become a contract only when they are enforceable with the help of law. Any confusion, any extra understanding you need about the term enforceability, please let me know. तो समझ में आ रहा है एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? यस और नो? Ma'am, repeat once more. हाँ, तो इसको बिल्कुल प्रवचन की तरह मत लो, ठीक है? दिस इज नॉट प्रवचन दैट आई एम गिविंग। So you have to apply your mind, understand. नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। See, every offer generates acceptance. ऑफर का मतलब क्या है? कि सामने वाले से हम लोग एक्सेप्टेंस की उम्मीद रखते हैं, उसे हम ऑफर बोलते हैं। तो ऑफर जनरेट्स एक्सेप्टेंस। एवरी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर मेक अ एग्रीमेंट. Every agreement will not become a contract. Why? Because every agreement is not enforceable with the help of law. Only those agreements which are enforceable by law will become contracts.
and those agreements which are not enforceable by law will not become contract. ठीक है, तो एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है, कब कहेंगे कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है? जब उस एग्रीमेंट का ब्रीच होने के बाद जिसका नुकसान हुआ है वो बंदे को नुकसान भरपाई सामने वाले से मिल सकती है। तो अगर नुकसान भरपाई मिलने की चांसेस है या मिल सकती है ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, तब हम बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा गाड़ी गराज में दे दिया सर्विसिंग के लिए, उसने 3 दिन के बाद बुलाया, मैं 3 दिन के बाद गई, मेरा गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो पता चला कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया। अब मेरी गाड़ी गराज वाले के प्रीमाइसेस में से चोरी हो गई, तो किसकी जिम्मेदारी है? गराज वाले की। किसकी तरफ जिम्मेदारी है? मेरी तरफ। So the garage owner has got a responsibility towards me. What responsibility? Either pay me the cost of my vehicle or get the vehicle back. तो मेरा व्हीकल अगर 70,000 का है तो उसने मुझे 70,000 देने हैं प्लस कंपनसेशन अमाउंट देना है, क्योंकि उसकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो नेग्लिजेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर कैसे बनी? एग्रीमेंट के वजह से बनी। क्या एग्रीमेंट? कि मैंने मेरी गाड़ी उसके पास सर्विसिंग के लिए दी थी। गॉट इट? तो एग्रीमेंट से रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिस्चार्ज नहीं की गई तो राइट एनफोर्स करने का टाइम आता है। राइट एनफोर्समेंट का मतलब है कि रेमेडी मिले। गॉट इट? तो एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एवरी एग्रीमेंट के ब्रीच के बाद हम लोग रेमेडी नहीं दे पाएंगे। अब गराज की जो एग्जांपल मैंने दी इसमें रेमेडी दे सकते हैं। अब मुझे तुम बताओ, ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कि वापस समझाने के लिए मुझे बोला था, उसको पूछ रही हूँ मैं। अब समझो, मैंने तुमको, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर गुड नेम? जिसने अभी पूछा कि मैम वापस एक्सप्लेन करो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। श्रुति। श्रुति। तो देखो श्रुति, अगर मैंने तुमको पूछा कि अभी क्लास के बाद सीसीडी आओगे क्या कॉफी पीने, तो तुम्हारा आंसर क्या है? यस। ठीक है, तो सबके सामने, अभी ये 14-15 लोग हैं यहाँ पे, सबके सामने श्रुति ने बोला कि शी विल कम टू सीसीडी फॉर कॉफी। अब मैंने क्लास खत्म होने के बाद मैं गई सीसीडी, बैठी रही वहां पे, कॉफी के ऊपर कॉफी मैंने पी, श्रुति तो आई नहीं। अब श्रुति आने वाली थी इसलिए मैं सीसीडी गई ना, ठीक है, वो तो आई नहीं, मेरे तो यूं 1000 रुपए खर्चे हो गए सीसीडी में। कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट श्रुति एंड रिकवर इट? नो मैम। नो। No. देखो अब ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट बोल रहा है। गराज वाले ने मेरा स्कूटर घुमा दिया या चोरी हो गया, जो भी, मेरे को स्कूटर नहीं मिल रहा है उसके प्रीमाइसेस में से, इज ही लायबल टू मी? यस और नो? Yes. देखा, ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट कैसे आ रहा है। अब कॉफी पीने के लिए वो नहीं आई, उसने प्रॉमिस किया था ना मैं आऊंगी, तुम्हारे सामने बोला ना अभी श्रुति ने, आऊंगी कॉफी पीने। यस और नो? यस मैम। है ना? और वो नहीं आई, तो तुम बोल रहे हो मैं श्रुति से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज अ एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। मैंने तुम लोगों को मेरे शादी में बुलाया था, आप लोग तो आए नहीं मेरी शादी में। पर प्लेट 300 का रेट लगाया था वो केटरर ने, आपका भी कैलकुलेशन दिया था। अब 15 लोग मेरी शादी में आए नहीं, 15 × 300 कितने का खर्चा हो गया मेरा, बताओ। केटरर वाला तो अपना अपना पैसा लेगा ना। सबसे महंगा वाला केटरर लगाया था मैंने, उसने मुझे 300 रुपए पर प्लेट का हिसाब दिया था। अब तुम लोग 15 लोग नहीं आए मेरी शादी में, 15 × 300 मेरे को कितना नुकसान हुआ? टेल मी, कितना अमाउंट का नुकसान है मेरा? अमाउंट बोलो। 4500. 4500. अगर वो खर्चा नहीं होता तो अच्छा होता ना, मेरे पैसे बच जाते, करीबन 5000 रुपए। अब क्या करूं मैं, तुम्हारे सब 15 लोगों के खिलाफ केस फाइल करूं और 500-500 हर एक से वसूल करूं मैं? नहीं होता है। नहीं.
नहीं कर सकते ना। मैंने जब आपको बोला कि मेरे शादी में आना पक्का, तुमने क्या बोला? आओगे, वैसे बोला था ना। कोई भी तुमको शादी में बुलाता है तो तुम उसको मुंह पे बोलते तेरी शादी में मैंने आऊंगा? तुम बोलते हाँ हाँ ठीक है वेलकम, है ना? तो ये क्या हो गया? उसने तुमको इनवाइट किया, उसने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस, उसने उसका मैरिज विजिटिंग कार्ड, क्या होता है वो, मैरिज क्या, विजिटिंग कार्ड नहीं, क्या होता है शादी का? Wedding card. वेडिंग कार्ड, हाँ वेडिंग इनविटेशन कार्ड, है ना? तो उसने आपको वेडिंग इनविटेशन कार्ड दिया और आपने बोला हाँ आएंगे आएंगे पक्का पक्का आएंगे, और नहीं गए आप शादी में, उसका तो पैसा वेस्ट हो गया। उसने तो आपके लिए पर प्लेट का खर्चा जो है वो तो केटरर को प्रॉमिस किया था, वो तो भरेगा केटरर के पास पैसा, तो वेस्ट हो गया उसका। वो आपसे रिकवर थोड़ी ना कर सकता है। भले एग्रीमेंट था, बट ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, समझा ना? अभी कॉफी पीने के लिए, हाँ मैं आऊंगी कॉफी पीने के लिए, ऐसे श्रुति ने बोला। कोई फ्रेंड तुमको पूछते अरे मूवी चलते हैं, कल आ रहा है क्या, लॉकडाउन खत्म हो गया और मूवी लिमिटेड सीट के साथ खुल गया है, थिएटर्स खुल गए लिमिटेड सीट के साथ, तो तुमने उसको बोल दिया हाँ हाँ मूवी ना मैं आता हूँ आकर, और फिर तुम गए नहीं मूवी देखने। फिर तुम उसको पूछते हो फोन करके अरे यार मैं नहीं आ पाया मूवी के लिए, तूने क्या किया? तो बोलेगा तू आया कि नहीं, ये देखते देखते मैंने सिर्फ मेरे अकेले का टिकट लिया, या मैंने 2 का टिकट लिया था, मैंने किसी को बेच दिया। अगर उसने नहीं भी बेचा, उसका पैसा वेस्ट भी गया होगा, तो कैन ही फाइल अ केस अगेंस्ट यू टू रिकवर द मूवी टिकट? नो। नहीं। हाँ, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट हो गया, शादी में आएंगे हम लोग, नहीं गए तुम लोग शादी में, क्या है ये सोशल एग्रीमेंट है, ये कहीं भी एनफोर्सेबल नहीं। किसी भी लॉ के तहत किसी भी कोर्ट में आप केस फाइल करके ये रेमेडी इसके लिए नहीं ले सकते हो। इसलिए ये वाला एग्रीमेंट तो है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, सब है, फलाना फलाना, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब ये कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा तभी, ठीक है? अब और एक सवाल मैं पूछती हूँ, हाँ, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों की शादी अभी ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है यानी शादी हो गई उनकी, हाँ। अब शादी टूट गई उनकी, डिवोर्स ले लिया उन्होंने। अब जिस दिन उन्होंने डिवोर्स लिया ना, उस दिन उन्हें कोर्ट में एक टर्म लिख के दिया था, एग्रीमेंट उनका ये से हुआ था कि डिवोर्स हो जाएगा, और हर महीने जो ये हस्बैंड है ना अपनी वाइफ को, अभी तो एक्स वाइफ हो गई वो, तो हस्बैंड डिवोर्स के बाद वाइफ को हर महीने एक अमाउंट देगा, पकड़ लो कि 30,000 वो दे रहा है। अब उसने कुछ महीने दिए, 3-4 महीने, उसके बाद उसने वो पैसा देना बंद कर दिया। अब वो वाइफ ने केस फाइल किया अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू थिंक? इतना जितना अभी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप बताओ मुझे, विल द वाइफ सक्सीड और शी विल नॉट सक्सीड? Succeed. उसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत केस दाखल किया। Succeed. तो केस में दाखिल करके उसने क्या बोला कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ये मेरे को कितना देगा पर मंथ? कुछ आंकड़ा बोला था ना मैंने, कितना देगा हस्बैंड वाइफ को पर मंथ, ऐसे उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, 30,000। राइट? हाँ, तो 30,000 देगा ऐसे एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में। अभी तो नहीं दे रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गया, तो उसने अपना जो प्रॉमिस किया है वो ब्रीच किया है, तो मुझे एनफोर्समेंट के लिए रेमेडी दे दो, ऐसे उसने कोर्ट से रेमेडी मांगा। तो तुमको क्या लगता है, अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शी वेंट सेइंग दैट दिस इज एन एग्रीमेंट, व्हाट डू यू थिंक, विल शी विन? नो मैम, व्हाई? लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है ना। क्यों? क्यों नहीं है? केस फाइल हुई थी बट उसका रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद तो केस भी खत्म हो गई ना। हस्बैंड ने वाइफ को क्या बोला था, अभी मैं डिवोर्स दे रहा हूँ और डिवोर्स के बाद हर महीने मैं तेरे को 30,000 दूंगा, तो डिवोर्स के बाद ही देना है ना। डिवोर्स हो गया इसका मतलब डिवोर्स की केस खत्म होगी, और उसने डिवोर्स के बाद ही तो हर महीना पैसा देना है, हाँ। यही एग्रीमेंट है। तो अगर वो नहीं देता है तो कैन शी फाइल अ केस अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर वॉट एवर मनी ही हैज प्रॉमिस्ड?
समझ में आ रहा है ना कैसे जा रहा है ये? एक मिनट, तेरे स्टूडेंट हेल्प इज एडमिट द स्टूडेंट। देखो अभी सोच में पड़ गए हो तुम लोग कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट है, डिवोर्स के बाद ही पैसा देने का एग्रीमेंट है। अगर वो डिवोर्स के बाद वो हस्बैंड उसको नहीं देता है उतना जितना एग्री किया था उतना, कैन द वाइफ फाइल अ केस अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? जितना बताओ मैं। Yes. 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 अब ये केस है बालपुर वर्सेस बालपुर का। इस केस में कोर्ट ने बोला कि वो इधर केस फाइल नहीं कर सकती है। कहाँ पे? अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The court said that this is a social agreement which is enforceable by law, but not by the law of Indian Contract at 1872. No, which law? Another law. There are other laws which help wives to get compensation or maintenance from their husband. So this kind of relationship cannot be enforced under the law of contract. Period. अब क्या समझ में आया बताओ? लीगल रिलेशनशिप तो उनका भी है, उनका भी एग्रीमेंट कन्वर्ट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट में। Got it? But still, the wife cannot file a case under the law of contract. She can file a case in the same courtroom, but under different legal position, not under the same legal position. हस्बैंड ऑफ वाइफ में हुआ है एग्रीमेंट, ये पोजीशन के बेसिस पे अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट में जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है ये प्योरली एग्रीमेंट से क्रिएट होता है। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल लॉ के वजह से क्रिएट हुई है। अगर हिंदूज की बात करें तो उन्होंने सप्तपदी दी थी इसलिए वो लोग हस्बैंड वाइफ हो गए। तो रिलेशनशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय अ provision of law, it is created by conduct of the parties and which is governed under a different law altogether. So she can claim compensation against husband in the court of law, but not under the provision of law of contract. कोर्ट में जा सकते हो लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्ट में नहीं जाना है। रेमेडी अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। रेमेडी कहाँ है? दूसरे वाले लॉज है इस तरीके की रिलेशनशिप को रेमेडी देने के लिए। Clear? Any confusion in understanding this case? Specifically distinguishing between Balfour versus Balfour and everything that you have learned in contract till now. That how rights and liabilities are created. And how once a liability is created, the aggrieved party can go to the court of law and get it enforced. But when it is a social relationship, husband wife का भी social relationship है, so there are certain social relationship which can be covered under specific laws, then they get a remedy only under that specific laws. जैसे कि इसको फैमिली कोर्ट में रेमेडी मिल जाएगी, but she will not get a remedy in the section where she was arrested. Any confusion, any doubt in this, please let me know. Okay, so moving ahead, understanding how every agreement is not contract, but every contract is always an agreement, because unless and until it is an agreement, it will never become a contract. हाँ, अब वो एक हो गया basic requirement. दूसरा basic requirement क्या है? Whenever two parties are entering into an agreement, always agreement है तो दो parties तो होनी चाहिए। अगर दो parties है तो दोनों के दोनों एक ही समय पे उस agreement के बारे में एक ही direction में सोच रहे हैं। So when both the parties think same, when they think alike about the same subject matter at the given point of time, then their minds are meeting, and which is called as consensus attitude. Can anybody read this slide? एकदम clear हो जाएगा एक मिनट में. Please read the slide.
May I read, ma'am? Yes, please. There must be a mental state to create a legally binding relationship. Mental state, meeting of the minds, consensus ad idem, agreeing to the same thing in the same sense. When both the parties to a contract have the same understanding of the terms of the agreement. Example, if Bobby said, I will buy all your stock and he means shares in a corporation, and Sunny said, I will send all my stock to you and mint his cattle. Can this be a basis for the formation of a contract on the grounds of consensus? Legally binding relationships are those from which those obligations arise. Okay. So are you getting it clear that unless or until both the parties think the same thing about the contract, then till that time the mental state of every party is different and then contract cannot be entered into. So to create contract, the most essential part is both the parties should think same at the same time regarding the subject matter of contract, and that's called as meeting of minds. That is also called as consensus ad idem. Consensus ad idem का मतलब है one in mind. Okay. Then we moved on to understand कि ये सब अभी एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह सब कवर करके फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या जब भी आप सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट करते हो अपने रिलेशनशिप में, तो क्या आप हमेशा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो? नॉट नेसेसरी. व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन डिस्कशन गोइंग ऑन बिटवीन टू पार्टीज, okay, there is a possibility that contractual relationship is deferred somewhere. तो अगर वो इंटैक्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनी जाएगा और उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Why it is valid? Because it has covered all the essential elements of a contract. That is why it is called as a valid contract. यहाँ पे valid का मतलब है चलो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाइंडिंग है. नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट. अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? एग्रीमेंट. ओके. क्यों? क्यों किया होगा एग्रीमेंट जैसे मेंशन? क्योंकि जैसे तुम वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हो इस तरीके से फाइनल हो गई ऐसे पकड़ा जाता है. ओके, एकदम कंपलसरी लायबिलिटी हो गई ऐसे पकड़ा जाता है. तो एग्रीमेंट क्यों कहा है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसेंशियल एलिमेंट तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ चीजें यहाँ पे गायब है, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट ही रहेगा. और फिर ये वॉइड एग्रीमेंट है, लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हुई है, तो ये उसी में से किधर रिलेशनशिप फिट बैठता है. इसलिए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड कभी नहीं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और कभी ऐसे लिखना भी मत, क्योंकि ये ग्रॉसली रॉन्ग है. जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं है वो हमेशा एग्रीमेंट ही रहते हैं और फिर वो किसी चीज के वजह से वॉइड हो जाते हैं. बिकॉज एवरी एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड ab initio. Ab initio का मतलब है right from the beginning. Sometimes agreements are void ab initio right from the beginning. Example, agreement with the minor. Contract Act में क्या बोला गया है कि you cannot enter into a contract with the minor. क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट क्यों कहा? क्योंकि वो रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो एग्रीमेंट है. और ऊपर से वो एग्रीमेंट भी लीगल नहीं है, इलीगल है, इसलिए वॉइड एग्रीमेंट. नेक्स्ट है वॉइडेबल एग्रीमेंट. अब यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है कि कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल के बाद कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हमको समझना है कि वॉइडेबल और वॉइड का फिर क्या फर्क है. अगर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको वॉइड बना दिया, बिल्कुल ही गलत बना दिया, और वो एग्रीमेंट ही है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं कभी. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी तरीके का एक टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, या एक जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अगर वॉयलेट हो गई है
वॉयलेट हो गई है, अरे जैसे बोला था वैसे नहीं है, तो फिर वो प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल बन जाता है। अब वॉइडेबल का मतलब क्या है, जो एग्रीव पार्टी है वो डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना है कि नहीं एनफोर्स करना है। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। समझो श्रुति, तुम्हारा एक अच्छा सा फ्लैट है कॉलेज रोड पे, जिसकी आज की कीमत कॉलेज रोड पे 1 CR है। मुझे मालूम है, अगर मैं तुमको बोलूंगी कि ये वाला फ्लैट, ये वाला मुझे प्रीमाइसेस बेच दो 50 lakhs में, तुम ना बोलोगे, आई नो दिस। तो मैंने तुम्हारे ऊपर किसी तरीके से प्रेशर एक्सरसाइज करने की कोशिश की, और उस प्रेशर को सरेंडर करके तुमने हाँ बोल दिया, मेरे मेडिकल ऑफिस में है, सॉरी यानी मेरा मेडिकल ऑफिस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ गया, ऐसे मुझे लगता है। बट मैंने तुम्हारी कंसेंट ही वैलिड नहीं ली है ना, वैलिड तरीके से मैंने तुम्हारी कंसेंट नहीं ली हो। कंसेंट हो तो ही तो एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, बोथ द पार्टीज एग्री। एग्री का मतलब क्या है, अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन रख के एग्री किया है। तो अगर ये एग्रीमेंट नहीं है आपका, मैंने जबरदस्ती एग्रीमेंट लिया है, आपको बोला कि ये मुझे सस्ते में दे दो, हाँ, या मैंने झूठ बोल के तुमको बोला कि मुझे यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी चालू करनी है गरीब लोगों के लिए, तो मुझे सस्ते में तुम्हारी जगह दे दो, तुमने दे दी, तो मैंने मेरा इन्फ्लुएंस यूज करके तुमको झूठ बोल के तुमसे सस्ते में प्रॉपर्टी ली है। तो इसे क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट तो है ये, इसका रिलेशनशिप वैलिड है। ऊपर का पॉइंट आपने देखा वो वॉइड है और वो एग्रीमेंट है, और नीचे का आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट है वो, लेकिन बाद में वो वॉइडेबल हो गया। तो वॉइडेबल का मतलब है कि ना तो पूरा वॉइड है ना तो पूरा वैलिड है। तो क्या है वॉइडेबल का मतलब, कि जो एग्रीव पार्टी है, जिसका कंसेंट हमने ऐसे जबरदस्ती से लिया या उसको डरा धमका के उससे अगर कंसेंट लिया है, तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में रहना है कि नहीं रहना है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसको रहना है या नहीं रहना है उसने डिसाइड करना है, इसलिए द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज यूज। तो मैंने आपको कहा था पहले भी कि लॉ में ना हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड पॉइंट में एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है, थर्ड पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है, और फोर्थ में तो सीधा इलीगल एग्रीमेंट ही बोला है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला नहीं है। वेयर दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? कॉन्ट्रैक्ट के टाइप सीख रहे हैं ना हम लोग। तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट are in terms of becoming a are in the terms of becoming a contract. Void agreement and illegal agreement were on the terms of becoming a contract but did not become contract. Got it? Then on the basis of formation it is express, implied or positive. अब इतना जो आपने सीखा है अभी तक, हाँ, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट becoming contract, not becoming contract, then enforceability, with the help of different examples. Now consensus addendum सीखा आपने। जब तक consensus addendum नहीं होगा, हम लोग बोल नहीं सकते कि ये रिलेशनशिप वैलिड है। तो क्यों सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी एग्रीमेंट नहीं बन सकते। इतना जो हमने किया, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी है? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीन पे आपके लिए डेफिनेशन दिए हुए हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। somebody please read it. Ma'am, may I? I said yes, please read. How is a contract made? Offer, acceptance, consideration. Offer. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, he is said to make an offer. Example,
A says to B that I want to sell you my watch for rupees 100. Acceptance. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Example, B says to A that I accept your offer. Consideration. Consideration is anything of value promised to another when making a contract. Example, A agreed to buy the watch for rupees 100. Rupees 100 is the consideration here. ओके, तो कंसिडरेशन से ही शुरू करते हैं। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है। अगर 100 रुपए का घड़ी आप 1000 रुपए में बेच सकते हो तो वो वैलिड है, ठीक है। तो कंसिडरेशन के बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बारे में ये रूल रेगुलेशन है कि इट शुड नॉट बी अपोजिट टू द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑफरर। जो भी ऑफरर जिस आइडियोलॉजी के साथ मेरे को ऑफर देता है, मैं उसी आइडियोलॉजी के साथ उसका पूरा का पूरा ऑफर वैसे के वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मैंने थोड़ा भी चेंज किया उसमें तो इट वोंट बी कॉल्ड एज अ एक्सेप्टेंस। देन कम्स ऑफर लेटर। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी डाउट है? So if I'm No, giving ma'am. time, I really want you to come up with any doubts. Okay, so offer, acceptance and consideration. Consideration is always something in return. So now we come up with types of offer. Types of offer, there are basically two types of offer. One is specific offer and one is general offer. फिर क्रॉस ऑफर और चैप्टर ऑफर भी है। अब okay, so have you read this specific offer and general offer? So from the very definition of general offer that you can see on the screen, and I presume that you have read it, this is an offer which is given to public at large. It is called a general offer. And specific offer means offer which is given to a specific group of people, of a specific individuals. ऐसे होता है, एक तो जनरल ऑफर दिया जाता है या फिर स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है। अब ये बोलते हैं कि ऑफर इज ऑल्सो a triggering point, a starting point of a contractual relationship. So if offer is a starting point of contractual relationship, then what is acceptance? Acceptance is a lighted matchstick. जलती हुई काड़ी है वो। It is a matter of matchstick. Acceptance is what? It is a burning matchstick to the train of gunpowder. Gunpowder क्या है? Offer. तो जैसे ही ये बर्निंग मैचस्टिक गन पाउडर को लगता है, वैसे गन पाउडर दर दर आके ट्रेन को चलाता है। ऐसे उसका कंसेप्ट है पूरा। एक्चुअली यही डेफिनेशन आपको काफी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बुक्स में भी मिलेगा। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस इज अ बर्निंग मैचस्टिक टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। क्यों ऐसे? क्योंकि ऑफर देने से रिलेशनशिप नहीं बनती। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है तब तक कोई रिलेशनशिप तैयार ही नहीं होती। तो जनरल ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है वो क्या है? जनरल ऑफर। पब्लिक एट लार्ज को दिया है, पब्लिक में से किसी ने भी उसको एक्सेप्ट किया तो भी चलेगा। ये व्यू से, ये सोच रख के ऑफर दिया गया है, उसको हम बोलते हैं जनरल ऑफर। ऑफर फॉर पब्लिक एट लार्ज। अब स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है या स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि समझो आर्टिस्ट गैलरी ने अनाउंस किया कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है अगस्त में, तो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक एज ग्रुप 14 से 30, एज ग्रुप 14 से 30 और टाइम दिया उन्होंने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। कोई भी चीज तुम खरीदो, तुम्हारा एज प्रूफ दिखाओ, अगर तुम 30 के अंदर हो तो हम तुम्हें 70% डिस्काउंट देंगे। ऐसे उन्होंने ऑफर किया है। तो ये जनरल ऑफर हुआ कि स्पेसिफिक ऑफर? ये स्पेसिफिक ऑफर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज ग्रुप डिफाइन किया है वहां पे। यही एज ग्रुप वालों के लोगों को 70% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक हो गया स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रुप
अभी वो सबको तो नहीं जानते, इस एज ग्रुप में जो है उसको नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ग्रुप बनाया, एज ग्रुप बना के बोला कि ये एज ग्रुप वालों को ही हम देंगे, तो फिर ये स्पेसिफिक ऑफर बन जाता। अगर किसी ने एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली ऑफर दिया कि तू मेरा जगह और खरीदेगा क्या, मेरे को बेचना है, मेरी जगह और कार है, मुझे बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे? सामने वाले ने बोला हाँ खरीदूंगा मैं, इतने इतने अमाउंट में, 60 लाख 10 लाख में, कुछ उसका डिसाइड हुआ, तो वो हो गया था स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक बंदे को दिया है। तो स्पेसिफिक ऑफर इज ऑफर गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ। अब जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर पे कुछ केस लॉज है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन है और अनकंडीशनल अनएम्बिगियस कब होता है ऑफर एक्सेप्टेंस, उसका एक अंडरस्टैंडिंग इस स्लाइड में आपको मिलेगा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और उसी में सब पॉइंट है कम्युनिकेशन और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर, राइट? कैन यू रीड इट? So I give you 1 minute to read the entire. भले आप लाउड रीडिंग नहीं करो चलेगा, लेकिन आप ये जो है वो 1 minute. ओके, सो ये जो कंटेंट है स्लाइड का, आई होप यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली. आई गिव यू 1 minute टू रीड दिस एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. So once you finish reading it, let me know. So I hope you have already read this. What does this first paragraph talk about? It talks about communication of offer and acceptance. So it says that जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक ऑफरर के ऊपर भी वो ऑफर बाइंडिंग नहीं है. तो ऑफरर कौन है? जो बंदा ऑफर देता है वो है ऑफरर. So communication of offer is very necessary. Unless and until the offer is communicated, it will not generate acceptance. Acceptance ही generate नहीं हुआ, offer ही communicate नहीं हुआ, तो अपना कैसे चलेगा? ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो अपना रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा? ऑफर कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद ही एक्सेप्टेंस होगा और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनेगा. ठीक है, तो ऑफरर जब देता है तब ऑफरर ने देखना है कि ऑफर के पास वो प्रॉपर्ली लैंड हुआ कि नहीं, एंड प्लस उसमें ये भी देखना है कि कंसेंसस एडिडम है कि नहीं. स्टार्टिंग में ही ऑफरर की जिम्मेदारी होती है देखना, number 1 whether it is communicated properly or no, and number 2 whether acceptance is done by the board or when the acceptance is done by the person or no. तो acceptance करने के बाद भी acceptance भी communicate करना बहुत जरूरी है, वरना जनरल ऑफर दिया है, लोगों को कैसे पता चलेगा किसने एक्सेप्ट किया है ना? इसीलिए एक्सेप्टेंस इज वेरी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी नेसेसरी एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज आल्सो वेरी नेसेसरी. Offer acceptance must be clear, not vague, should be absolute and unambiguous. तो जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करता है, जो भी बंदा, उसने क्लियर और वेग टर्म, क्लियर टर्म में, ओके, क्लियर टर्म में एक्सेप्टेंस करना है. अनएम्बिगुअस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना है. क्यों? क्योंकि ऑफर में कंडीशंस दिए हुए हैं और एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि जैसे कंडीशन दिए हैं वैसे के वैसे एक्सेप्टेड है, तभी हम उसको एक्सेप्टेड बोलेंगे. अगर थोड़ा भी चेंज किया एक्सेप्ट करने वाले ने, तो रिलेशनशिप नहीं बनेगी. क्लियर? communication of offer, how it is necessary, communication of acceptance, how it is necessary, and how a relationship will be built.
after offer and acceptance both are communicated to the respective partners. Done? Any difficulty in understanding this? No, If you ma'am. have, tell me yes or no. No, ma'am. Right. So here you have another concept called as invitation to offer. Can you read it? Anybody? Complete? Invitation to offer. So what you have to say about this point? Invitation to offer. So have you read invitation to offer? Is there Yes. something that you are getting confused about? समझ में आया क्या है इनविटेशन टू ऑफर? Yes, ma'am. Can you tell me in your own words without bothering about whether it is right or not? Invitation to an offer means offer देने के लिए invite करना. हाँ हाँ हाँ, वापस एक बार रिपीट करो, क्लियर नहीं सुने दिया. Invitation to an offer मतलब offer देने के लिए invite करना. हाँ, तो इनविटेशन टू ऑफर मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसका रिजल्ट क्या होगा, ऑफर आएगा सामने वाले से. देखो जब वो कोई सेल करने वाला होता है तो वो क्या करता है, खुद ऑफर देता है. अब कोई भी अभी मिठाई बेचने वाला बंदा खुद ऑफर देता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसने बताए हुए रेट पे हम लोग मिठाई लेके आते हैं. यही मिठाई वाला बंदा इनविटेशन टू ऑफर भी देता है. वो कैसे करता है ये? डिस्प्ले लगा के करता है ना. मिठाई की डिस्प्ले लगाता है और हर एक डिस्प्ले पे मिठाई की रेट लगाता है. Got it? Yes or no? Yes. Yes. ओके. इनविटेशन टू ऑफर अभी तुम्हारा क्लियर हो गया. इनविटेशन का ऑफर का मतलब है इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन, फिर चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, इस तरह का कम्युनिकेशन जिसके वजह से सामने वाला जनरेट करेगा ऑफर. फिर इनविटेशन देने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि ये जो हेल्प दी है या ये जो रिस्पॉन्स दिया है इनविटेशन टू ऑफर को, वो एक्सेप्ट करना कि नहीं करना. तो जब ऑफर जनरेट होती है तो सामने वाले को क्या करना है, एक्सेप्टेंस देना. तो कंपलसरी है क्या एक्सेप्टेंस देना? नो. अगर मैं खुद ऑफर देती हूँ, सामने से हाँ आया तो मेरे पे बाइंडिंग ही है. अगर सामने से ना आया, पेरिशेबल गुड्स है, तो मेरा नुकसान है. ऑफर ऐसा होता है. इनविटेशन टू ऑफर कैसा है, इनविटेशन टू ऑफर दिया, सामने से ऑफर आएगा, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि
रिजेक्ट करना है क्या एक्सेप्ट करना है. So invitation to offer generates offer. Clear? Yes. कुछ भी कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लेना. ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए. जिन्होंने लास्ट क्लास में सॉल्व किया है आप आंसर नहीं देंगे, ठीक है. आप बायो ब्रेक लिख सकते हो. तो ये एक प्रॉब्लम है जिन्होंने ये पहले सॉल्व नहीं किया है. रीड इट एंड सेंड मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. डायरेक्ट मैसेज में भेजना. योर टाइम स्टार्ट्स. अभी तक एक ही आंसर आया है. 2 आंसर्स. यस. Ma'am, revoke means? हाँ, रिवोक का मतलब है टू कॉल बैक द कॉन्ट्रैक्ट, टू फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्चुअली फिनिश ये वर्ड राइट नहीं होगा, रिवोक. क्योंकि देखो हम कंसेंट देते हैं ना, कंसेंट देते हैं तो हमने क्या किया, रिलेशनशिप चालू कर दिया. अब ये ऑनगोइंग है रिलेशनशिप. रिवोक का मतलब है स्टॉपिंग इट देयर एंड कॉलिंग बैक द कंसेंट. पहले तुमने एग्री किया तो कंसेंट दे दी, अब कंसेंट काम कर रही है, कुछ ना कुछ कंसेंट काम कर रही है. अभी उसको रोकना कैसे, तो उसको वापस लेने से ही तुम कंसेंट को रोक सकते हो. तो वापस लेने के लिए टर्मिनोलॉजी है रिवोक. यू कैन रिवोक द कंसेंट. And when the consent is revoked, what happens to the contract? When the consent is revoked, the contract becomes
क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्ट जब कंसेंट रिवोक कर दी तो? It will be finished. हाँ, लायबिलिटी खत्म हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. सो काफी आंसर्स आए हुए हैं यहाँ पे. हाँ, अब इधर देखो, कंसेंसस एट इडम को आपने लगाना है यहाँ पे. ये बंदे ने उसको बोला मेरा कार खरीद ले, ये बोलता है मैं खरीद लूंगा अगर तुम उसका कलर बदल दोगे. तो कलर बदल दोगे तो ऐसे बोला, इसका मतलब क्या है, इसका कंसेंट है ही नहीं. कंसेंट कब होगा? जब वो वैसे के वैसे लेगा. ये कंसेंट में कंडीशंस डाल रहा है, तो कंसेंट तो है ही नहीं. कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं. So B is the answer. Prabodh is not liable because the contract is not accepted. Contract accept ही नहीं हुआ. उसने कलर बदलने के लिए कहा तो उसने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया. कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है तो देयर इज नो एक्सेप्टेंस. अगर स्लो जा रहा है तो आप बता दो, थोड़ा फास्ट ले लेंगे. ये नेक्स्ट है, इसको भी ठीक से पढ़ के इसका आंसर बताओ. एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के बाद ही रिलेशनशिप बनता है. Yes, you can unmute yourself and tell me the answer so that we are little faster also. अब देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का फंडा क्या है. जो बंदा एक्सेप्टेंस देता है, उसने अगर एक्सेप्टेंस दे दी तब तो उसकी पूरी कंसेंट आ गई ना, उसका पूरा विल आ गया. उसने तो हाँ बोल दिया. और जब बंदा ऑफर देता है तो वो इसी इंटेंशन से देता है कि सामने वाले ने हाँ बोलना चाहिए. तो थोड़ा प्रिजम्पटिव एक्सेप्टेंस तो ऑफर देने वाले बंदे के पास है ही है. और जब इसने एक्सेप्टेंस दिया है तो उसने तो पूरा का पूरा कंसेंट दे दिया. एक्सेप्टेंस, उसके कंसेंट को, अब उसके कंसेंट का अपेक्षा रख के मैंने ऑफर दिया था, उसका कंसेंट उसने भेज दिया वो साइड से. मेरे पास वो पहुंचा नहीं पहुंचा ये इमटेरियल है. उसने हाँ बोल दिया तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाता है. कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट whether the offerer could hear the yes or he could not hear the yes. Contract is complete and binding upon द अदर पार्टी. तो ये वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और रेखा के ऊपर वो अमिताभ के ऊपर अपना ऑफर बाइंडिंग हो गया. क्योंकि जैसे सामने से कंसेंट आता है ना, ऑफरर के ऊपर अपना ऑफर बाइंडिंग हो जाता है. अगर मैंने तुमको कोई ऑफर दिया है, मेरा जगह और खरीदोगे का 10 लाख में, तुमने हाँ बोल दिया, ठीक है, तो मेरे पे बाइंडिंग हो गया कि मुझे अभी 10 लाख में मेरी जगह और को बेचना है. उससे ज्यादा अमाउंट में मैं उसे बेच नहीं सकती. आया ना समझ में? तो जब मैं ऑफर दे रही हूँ तो मैं विद इंटेंशन दे रही हूँ कि तुम हाँ बोलोगे. तुमने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया तो तुम्हारे लिए तो वो बन गया ना एक्सेप्टेंस. यानी तुम्हारे लिए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया. तुम्हारे लिए ये हो गया कि एक्सेप्टेंस तुमने दिया, इसलिए मेरा ऑफर मेरे पे बाइंडिंग हो गया. तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जाए तो. इसीलिए तुम्हारी कंसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ क्या बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया समझो. ठीक है.
Next, can anybody read this? Yes, please, somebody. थोड़ा सा फास्ट करते हैं अभी, थोड़ा ही बाकी है. Ma'am, may I? Yes, please. What does a contract require to be legally valid? All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. Section 10 of ICA. So this figure also lets you know what are the essential elements of valid contract. तो अभी इसमें टर्म्स कंडीशंस है. देखो, ऑफर है, ऑफर के टर्म कंडीशन है. इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है इस तरीके से अगर ऑफर देते हो तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन को हम ऑफर मानेंगे. इस तरीके से कम्युनिकेट करते हो तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन को हम लोग एक्सेप्टेंस मानेंगे. फिर ये ऑफर और ये एक्सेप्टेंस क्या बनाता है? एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट अगर लॉ से एनफोर्स कर सकते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा. आया समझ में कैसे टर्म्स कंडीशंस दिए हुए हैं? तो जब भी ये एग्रीमेंट इन सारी एसेंशियल एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा और उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? एक एग्रीमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट उस एग्रीमेंट में होने चाहिए? उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए. पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में पूरा अलग सा चैप्टर है, विल टेक इट दैट टाइम. बट एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, देन कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, एनी कंसिडरेशन इज नॉट अलाउड. साई प्रसाद, sorry, so every term of this essential element has to be satisfied by the relationship, by that agreement. Only then it will get converted into a contract. Okay. Right. So amongst all the essential element, consideration becomes an important part. Consideration is what? It is something in return. Unless and until there is a consideration, there cannot be a valid contract. So consideration should be legal. It should not reveal, it may not be of the same value in the eyes of law, but adequate consideration की requirement है ही नहीं. Requirement ये है कि consideration legal होना चाहिए. Inadequate भी होगा तो भी चलेगा. जैसे कि 10 रुपए की चीज में 1 रुपए में बेच रही हूँ, inadequate consideration है, चलेगा. बट वो 1 रुपया रियल होना चाहिए. ठीक है. फिर adequacy is immaterial, वो तो मैंने बोल दिया. इसके साथ एग्जाम्पल है, सॉरी. So adequacy of the consideration is immaterial. What is material is that there should be a legal and a consideration of a real value. Only then that particular kind of consideration will be considered as valid. Then next comes unilateral promise or promissory estoppel. Promissory estoppel का मतलब है कि once you promise to do something and that is why the other person entered into some kind of action, then you cannot revert back your promise. You can read the example here and understand. एक बार मैंने बोल दिया कि I will do this if you do that, and मेरे इस promise के वजह से अगर सामने वाले ने कोई action लिया है, I cannot go back from my promise. I am estopped. Estopped का मतलब है now I am caught. I should do whatever I had agreed earlier. जैसे ये example में है, A और B जो है वो मूवी देख रहे हैं. A B को बोलता है जाके पिज्जा लेके आ, तो पिज्जा लाएगा तो मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा. तो वो कंट्रीब्यूट करेगा इसीलिए B जाके पिज्जा लेके आया. तो B ने पिज्जा लाने के बाद A बोलता है अब मैं नहीं करूंगा कंट्रीब्यूशन. Now here B can claim contribution from A. अब ये समझ में आना चाहिए इसलिए पिज्जा का एग्जांपल दिया है. बट एनी प्रॉमिस
which the promiser, that is offerer, gives in order to get an acceptance from the other side, and then the other side accepts, is not only accepts, also doesn't act in the furtherance of that, then the even if there is no fault from the offerer side, the contract is binding upon the offerer. Okay, and that is called as promissory estoppel. उसने पहले promise किया था ना, तो अभी वो stop हो गया, अभी वो अपनी promise से पीछे नहीं हट सकता. ये है promissory estoppel. Okay, yes. तो ये essential elements का next part है consent. Consent is the next very important part of essential elements. जब तक consent valid नहीं है या एकदम free consent नहीं है पार्टी की, कोई भी पार्टी हो contractual relationship में, तब तक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का बेस ही कंसेंट है. कॉन्ट्रैक्ट का बेस ही कंसेंट है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोनों ने अपने मन से ही एग्री किया, अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन से एग्री किया, किसी के बहकावे में आके नहीं, किसी के दबाव में आके डिसाइड नहीं किया है, जिसने प्रॉपर्टी बेचा है उसने फंसाया नहीं है, वगैरह वगैरह. सो दीज आर all the elements which may vitiate your free consent. अगर फंसा के कंसेंट लिया है तो तुम्हारी कंसेंट है ही नहीं ना. वो फंसाता है यानी वो बंदा कुछ और ही तुम्हारे सामने चीज रखता है, तुम उसको बिलीव करके कंसेंट दे रहे हो, तब तो तुम्हारी कंसेंट बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लायक नहीं. ऐसा नहीं कि इनवैलिड है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता. एक तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा या फिर वैलिड होगा. ठीक है. Any doubt about understanding this? Please let me know. No, ma'am. क्लियर. कंसेंट क्या होता है, क्लियर हो गया कि कंसेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है. On the basis of the term consent, the contract is either declared as void or it is declared as voidable. तो आगे बढ़े, अगर कंसेंट क्लियर हो गया तो, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है. ओके. सो कोएर्शन, तो ये अभी एसेंशियल एलिमेंट्स है किसी भी ऐसे कंसेंट की, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है. तो ये नेगेटिव साइड क्या है इसका, कि उस कंसेंट में ये नहीं होना चाहिए, यानी कि कंसेंट में कोएर्शन नहीं होना चाहिए, कंसेंट में इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. इसलिए क्या नहीं होना चाहिए उसको एक्सप्लेन किया है. कोएर्शन तो कब बोलोगे कोएर्शन है, इसलिए ये डेफिनेशन पढ़ना और उसकी कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ये वाली कंसेंट में अगर ऐसा एलिमेंट है तो फिर कोएर्शन है भाई. अगर कोएर्शन है तो ये तुम्हारी कंसेंट तो वैलिड है ही नहीं. आया ना समझ में कि क्यों हम लोग ये एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ रहे हो. कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर मिस्टेक, फ्रॉड, इसको हम लोग डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है ये तुम्हारी कंसेंट को विशिएट करके रख देते, यानी कंसेंट को कंसेंट नहीं रखते. हाँ, ये किसी और की मर्जी बन गई. कंसेंट कब होगा, जब मेरी मर्जी है. बट अगर कोई मुझे जबरदस्ती कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो मर्जी मेरी है ही नहीं, वो तो धमकी देने वाले की मर्जी है. तो मेरी मर्जी क्या हो गई, विशिएट हो गई. तो जब मैं मेरी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तभी वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तभी वो बाइंडिंग है. अगर मैं मेरी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पे बाइंडिंग नहीं है. ये सीधा प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. ठीक है. अब तुम्हारी भी मर्जी है, तुम बोलो तो हम कंटिन्यू करें, तुम बोलो तो हम रुक जाए. 2:05 हो गए हैं और हम लोग 17 स्लाइड पे है, लेकिन 17 से 24 वाले स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. I don't want you people to get overburdened and then study this.
चाहे तो हम 5 मिनट ब्रेक लेके कंटिन्यू करें या फिर हम रुक जाए या ऐसे ही कंटिन्यू करें। 3 ऑप्शन है आपके पास। लेट मी नो इमीडिएटली, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। Ma'am, let us continue in the next session. ओके, ठीक है। Next session. Yeah. But for next session, you please read all these concepts and come, so that I will not, put on the explanation in your head. Instead of that, let us then take some nice examples. I'll tell you some good case laws also depend on this. So फिर और मजा। ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Thank you.